ہم ہر سال یہاں حاضر ہوتے ہیں. آج 81 سال بعد ہمیں پاکستان ریزولوشن کے متن کو ایک بار پھر پڑھنا چاہیے اور یہ عہد کرنا چاہیے کہ اس وقت ملک کو پہلے سے سب سے زیادہ متحد ہونے کی ضرورت ہے. جو اس ملک کے دشمن ہیں ان کے خلاف ایک شیشہ پلائی ہوئی دیوار بن کے وہ ملک جو ہمیں قائد اعظم نے عطا فرمایا اس کا نہ صرف تحفظ کرنا چاہیے پر اس ملک میں جو قائد اعظم کا ویژن تھا کہ یہ ملک کے لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کیے جائیں تاکہ وہ پیسفلی امن سے اس ملک میں رہ سکیں. ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا ویژن اس کو ہم نے لے کے آگے بڑھانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو 1971 کے بعد شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کو لیڈ کیا تھا اور 1973 کا آئین دیا تھا اس آئین کے تحت ہمیں آگے بڑھنا ہے. اور اس کے بعد شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور اب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور صدر آصف علی زرداری کی جو خدمات ہیں ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی لیڈرشپ میں ہم نے آگے بڑھنا ہے. ہمیں خاص طور پہ اس وقت متحد ہونے کی ضرورت ہے. اس وقت میں آج کے دن ہمیں اپنے کشمیری بھائیوں کو خاص طور پہ یاد کرنا چاہیے جو ظلم اور بربریت خاص طور پہ 5 اگست 2019 سے بھارت میں جو شروع ہوئی تھی اس دن کو بھی یاد کر کے اور یہ عزم کرنا چاہیے کہ قائد اعظم نے ہی کشمیر کو پاکستان کی شہرک کہا تھا اور اس شہرک کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے. ہمیں ایک بار پھر یہ عزم کرنا چاہیے کہ کشمیر کو حاصل کرنے کے لیے ہم ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہیں اور جو یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن ہے کشمیر کے بارے میں اس طریقے سے کشمیر کا مسئلہ حل کرنا ہے. اور اگر کچھ اور اس کے بارے میں سوچا جاتا ہے تو ضرور وہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں لا کے اور اس کے بعد کچھ اس کے بارے میں سوچا جائے. نہیں تو اس وقت ہمیں جو یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن ہے اس کے تحت ہی کشمیر کے مسئلے کا حل چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی یاد کرنا چاہیے کہ 1940 کی آل پاکستان مسلم لیگ کی جو نشست تھی اس میں ایک قرارداد فلسطین کے بھائیوں کے لیے بھی پاس ہوئی تھی اور آج کے دن پہ ہمیں اپنے ان بھائیوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے اور یہ ریزولو ہمارے ملک کا ہونا چاہیے کہ فلسطینیوں کو اپنے ملک حاصل کرنے تک ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. اور پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح کا یہی ویژن تھا. اچھا سر یہ بتا دیں کہ آپ دونوں حضرات جو ہے وہ کافی دنوں کے بعد بلکہ سال میں 1 سے 2 مرتبہ ساتھ نظر آتے ہیں تو ایک ہی سوال جو پچھلے سال بھی کیا تھا اس سے پچھلے سال بھی کیا تھا اس سے پچھلے سال بھی کیا تھا تو وہی سوال دہراؤں گا کہ وفاق اور صوبہ ایک پیج پر کب آئیں گے؟ کیا اس وقت وہ پاکستان لوگوں کو ملا ہوا ہے جس کا خواب قائد اعظم نے دیکھا تھا؟ یہ اندرونی اختلافات، یہ سیاسی جھگڑے، ترقی کا عمل رکا ہوا ہے، کب آپ سب ایک ہو جائیں گے؟ کب یہ لوگوں کے مسائل حل کریں گے؟ دونوں حضرات سے جواب چاہیے. میں بتا دیتا ہوں آپ کو. پہلے تو حمید ہم ملتے رہتے ہیں، ضروری نہیں کہ کیمرہ کے سامنے ہر وقت ملا جائے اور آپ کو بلایا جائے، دعوت دی جائے، لیکن یہ موقع ایسے ہوتے ہیں 23 مارچ کے حوالے سے جبکہ ہم دونوں کی ایک آئینی ذمہ داری ہے کہ ہم یہاں حاضر ہوں، لیکن اس کے علاوہ بھی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں اور جو بھی مسئلے مسائل ان پہ بات کی جاتا ہے. آپ کا جو سوال ہے ہمیں امید ہے کہ خاص طور پہ آج کل کے حالات کو دیکھتے ہوئے صوبے کی طرف سے ہمیشہ قدم آگے بڑھایا گیا ہے. جب حالیہ پچھلے اگست میں برساتیں ہوئی تھیں اور شہر کے کچھ علاقوں میں کافی مسئلے مسائل ہوئے تھے تب بھی فیڈرل گورنمنٹ نے جب کہا تو ہم نے لبیک کیا. پرائم منسٹر صاحب خود آئے تھے، یہاں گورنر ہاؤس میں میٹنگ ہوئی تھی اور اس کے بعد جو ایک
कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी थी, 3 वफाकी वज़रा और मेरी काबीना में मेरे साथ 2 और वज़ीर, हम 3 लोग हैं। उनकी वक्तन फ़वक्तन मीटिंग्स भी होती रही हैं और बात आगे बढ़ती रही, और फिर हमने एक प्रोविंशियल कमेटी भी बनाई थी जिसकी सरबराही मैं करता हूँ। उसकी अभी पिछले 3 दिन पहले मीटिंग हुई जिसमें वफाक के नुमाइंदे भी मौजूद थे, और हमारी कोशिश यही है कि इस सूबे को और इस मुल्क को की तरक्की के लिए साथ काम किया जाए। हमें ज़रूर कुछ रिजर्वेशंस हैं जिसका वक्तन फ़वक्तन मैं जिक्र करता रहता हूँ, आज इतना मुनासिब नहीं है कि उनकी बात करूँ। वो रिजर्वेशंस अपनी जगह पे, लेकिन हम इकट्ठा काम करके मुल्क की बेहतरी के लिए काम आगे बढ़ा रहे हैं। गवर्नर साहब इसी मामले पे गवर्नर साहब क्या कहें? देखें, जैसा कि अभी सीएम साहब ने आपको बताया कि हमारी अक्सर मुलाकातें होती रहती हैं। सीएम साहब मेरे पास तशरीफ़ भी लाते हैं, चाय बिस्किट पे गुजारा भी करते हैं, और सीएम साहब की ख्वाहिश होती है कि मीडिया के बगैर हम वैसे आपस में मिलते रहें। तो मैं तो अक्सर इनसे रिक्वेस्ट भी करता हूं कि जी पिक्चर जाने दें ताकि मीडिया को और दुनिया को पता चले कि हम साथ मिल के काम कर रहे हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, हमारी कुट्टी नहीं है, अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं तो। हमारी जो रिजर्वेशंस होती हैं, चाहे वफाक की सूबे से या सूबे की वफाक से, वो एक ही हुकूमत की भी हो सकती है कि वो जिस हुकूमत की अपनी वफाकी हुकूमत की अपनी सूबाई हुकूमत हो, उनके साथ भी कुछ ना कुछ रिजर्वेशंस होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी दूरी नहीं है दोनों जमातों में कि कोई बहुत बड़ा फ़र्क आया हो, कोई बातचीत बंद हो गई हो, कोई काम तरक्याती काम रुक गए हों या पैसे रोक लिए गए हों, या कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें स्मूथली चल रही हैं। कुछ रिजर्वेशंस सूबे को वफाक से हैं, कुछ रिजर्वेशन वफाक को सूबे से हैं, जो शायद टाइम के साथ रिजॉल्व हो जाएंगी, शायद ना भी हों, क्योंकि अपनी अपनी आइडियोलॉजी की बात है। पीपल्स पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी आइडियोलॉजी है। 2 मुख्तलिफ जमातें इस वक्त हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों हर मामले पर एक पेज पर भी आ जाएं, लेकिन जहाँ तरक्याती मामलात का काम बात होती है, जहाँ पे सूबा सिंध के मफाद की बात होती है, वहाँ पे मैं सिंध के साथ खड़ा होता हूँ। शाह साहब ये बता दीजिएगा, मेरा आपसे सवाल ये है कि बंदल आइलैंड भी वफाक को चाहिए, कराची के 3 अस्पताल बड़े भी वफाक को चाहिए, और अब सिंध के अफसरान भी वफाक ने आपसे मांग लिया। इसके पीछे वजह क्या है? दूसरी असातिज़ा पर आपके गैर पर तशद्दुद हुआ। असातिज़ा का मौक़िफ़ है कि वज़ीर तालीम आपसे गलत बयानी कर रहे हैं, कोर्ट के मामले को ले आकर गलत बयानी अवाम से कर रहे हैं, हालांकि अदालत ने कोई स्टे नहीं दिया और उनको मुस्तकिल करने में कोई उनके अपना कोई है, कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से वो जानबूझकर ये मामला टाल रहे हैं। देखिए, 2-3 सवाल आपने कर दिए। आइलैंड्स की बात जहाँ तक है, वो एक ऑर्डिनेंस आया था, वो लैप्स हो गया, वो बात ख़त्म हुई है इस वक्त। दूसरा, आपने अफसरान के बारे में और अस्पतालों के बारे में मैं आपको बता दूं, कल मैंने एक मीटिंग भी की थी, और उस मीटिंग में बड़ी तफसील से सुप्रीम कोर्ट का फैसला देख के, हमारे एडवोकेट जनरल साहब से सलाह मशवरा करके, और एक जवाब हमने वफाक को दे दिया है कि उस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से वफाक के हवाले अस्पताल नहीं किए थे। उस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के हवाले से एक तरीक़ेकार बताया था कि किस तरीके से वफाक ये अस्पताल ले सकती है। वो तरीक़ेकार पूरा नहीं हुआ, उसमें मैं डिटेल में ज़्यादा नहीं जाऊँगा। और उसी जजमेंट में ये गुंजाइश भी मौजूद है जिसकी कई बार बात हो चुकी है, और अभी मैं दोबारा दोहराता हूँ, अगर आप उसको पढ़ लेंगे, कि एक गुंजाइश सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में भी मौजूद है कि वफाक वो अस्पताल सूबे को चलाने के लिए दे सकता है। और हम वही रिक्वेस्ट करें कि, और हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपना जो हमारा मौक़िफ़ है, मेरा पर्सनल और हमारी हुकूमत का ये ख्याल है कि वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मुनासिब नहीं थी, और इसीलिए हम उसके रिव्यू में भी गए हैं। वो रिव्यू भी अभी पेंडिंग है, लेकिन ये जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स या कुछ बना दिया गया था, वो मुकम्मल तौर पे उस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की कॉन्ट्रडिक्शन है, और हमने ये वफाक को बता दिया। और मेरी एक बार नहीं, कई बार प्राइम मिनिस्टर साहब से जब बात हुई है, गवर्नर साहब भी मौजूद रहे 1-2 बार उन मुलाकातों में, जब उन्होंने कहा है कि ये अस्पताल सूबा अच्छी तरीके से चला रहा है, और हमसे तो पिम्स भी नहीं चलती है, सही ये लफ्ज़ थे, और ये सूबे को चलाना चाहिए, हम इस्लामाबाद से ये अस्पताल नहीं चला सकेंगे। तो वही हम रिक्वेस्ट करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब से कि लोगों की बेहतरी के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए, सर्विस की बेहतरी के लिए ये अस्पताल जैसे चल रहे हैं हमें चलाने दें। इस वक्त हम खुद इनोवेट हो गए, जिस तरीके से हम और डेवलपमेंट और यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इस तलवार जो हमारे सर पे लटकी हुई, इसकी वजह से रुक जाते हैं। अफसरान की जहाँ तक बात है, अफसरान का एक एग्रीमेंट है सूबे का और वफाक का,
और उसमें बड़ा साफ लिखा हुआ है कि कोई अफसर सूबे में आना और सूबे से जाना ये म्यूचुअल कंसल्टेशन से होगा। अगर वो रोटेशन पॉलिसी कोई बनाते हैं वो भी म्यूचुअल कंसल्टेशन से होनी चाहिए। जो अफसर, और ये दोनों मतलब वफाक को भी एग्री करना चाहिए और सूबे को भी, जो अफसरान हमारे पास आए हैं वो इसी पॉलिसी के तहत आए हैं, और अगर कोई जाएगा तो इसी पॉलिसी के तहत जाएगा। कुछ अफसर गए भी हैं अभी, उन्होंने मांगे, हमने बेहतर समझा अफसरान की हम अपनी मर्जी भी देखते हैं उसमें कि कौन ज़्यादा कंफर्टेबल काम करने में कहाँ पे है, और अगर कोई अनविलिंग वर्कर है तो हम नहीं चाहेंगे कि उसे इधर रखा जाए, और वफाक अगर उसको मांगे तो उस पॉलिसी के तहत हम करने के लिए तैयार है। उसके अलावा मैंने खुद भी लिखा है फेडरल गवर्नमेंट को, हमारे डिपार्टमेंट्स ने भी लिखा है कि इन अफसरान की कुछ जो है हमें ज़रूरत है और हम इनको छोड़ नहीं सकते, और जो एक एग्रीमेंट है फेडरेशन का और सूबों का कि ऑल पाकिस्तान यूनिफाइड सर्विसेज के जो अफसरान हैं उनका ट्रांसफ़र टू द प्रोविंस एंड फ्रॉम द प्रोविंस कैसे होता है, उसके तहत सारी बातें होंगी। हाँ, टीचर्स के लिए देखिए मेरी बात सुने, मुझे कोई मिसलीड नहीं किया गया, बड़ा क्लियरली बता दूँ इस चीज़ पे अभी नहीं, ये 1.5-2 साल बल्कि उससे भी ज़्यादा हाई कोर्ट के फैसले बड़े क्लियर थे कि इनको जाके पब्लिक सर्विस कमीशन में इम्तिहान देना है।